Hello student, today I'm telling you something about how you have to make your project work in your business studies for class 12th. Okay, so let me begin with, as the total weightage is of 20 marks and total project you have to make one file. Chapters and topic you have to choose one out of four. Now what the four topics you have given by CBC, I'll tell you briefly in this video. Next, allocation of marks is of 20 marks. First, initiative, cooperativeness and participation is of 2 marks. आप कितना इनिशिएटिव लेते हैं, कितना आप कॉपरेट करते हैं, आपके फाइल में दिखना चाहिए, कितना आपने उसमें पार्टिसिपेशन किया है. आउट ऑफ ऑल दीज यू गेट 2 marks. Then second, creativity in preparation. How you have made your file, what are the creativity you have shown in your file, you will get 2 marks. Then third, content, observation and research work. From where you get the content, what your observation towards the content, आपका क्या observation है उस content के base जो आप content लिख रहे हैं अपने file में, and what you have do the research for the work. You will get 4 marks of this. Next, analysis of situations. So how you have analyzed the situation. कैसे आपने सिचुएशन को एनालाइज किया, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सिचुएशन आफ्टर एनालाइजिंग, यू विल गेट 4 marks. एंड लास्ट, वाइवा, this is of 8 marks. You will get the question from your examiner based on the topic which you have made the file. जिस टॉपिक पे आपने फाइल बनाई है उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे फ्यू क्वेश्चन द एग्जामिनर विल कंडक्ट एंड यू हैव टू गिव द आंसर. ओके, क्लियर दिस मच? Okay, next. Now one chapter means the topic out of 4. So CBC बोर्ड ने आपको 4 टॉपिक दिए हैं. 4 टॉपिक में से आपने किसी एक टॉपिक को चूज करना है. You have 4 topics in your screen. First is elements of business environment. Second, principle of management. These 2 topic you will found in your first book. Fine. In your first part A. Okay, then next stock exchange and fourth marketing management. ये 2 टॉपिक आपके सेकेंड बुक से लिए गए हैं. फाइन. So out of these 4 topic you have to choose only one and you have to make a file. Now one project file essential. So आप एक प्रोजेक्ट को चूज करेंगे और उस प्रोजेक्ट के बेस पे आपने फाइल बनानी है. What are the following things you have to keep in your mind while you are making the file? First of all, the paper contained in your file is of 25 to 30 pages. Okay. Second, the file should be written by your hand. So it must be handwritten, not typed, not written by any other. It is your own handwritten file. Next, presented in folder. So you have to keep all the pages your handwritten in particular folder. And last, must be in a specific sequence. एक particular sequence होता है, उस sequence के according आपने अपनी फाइल को उस folder में present करना है. Okay. Now these are the few important things you have to keep in your mind while before starting your file. Okay, it is very much essential, very much important that how you are presenting your file, because जैसे जैसे आप अपने फाइल को बनाएंगे उससे आपको भी एक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. Fine. Now students are supposed to select one unit out of the 4 I told you. So are required to make only one project from the schedule unit. So consist of one project of 20 marks. Fine. Now first of all we will discuss about here the project 1. So all the detailed information is given in your screen. Project 1. So project 1, the topic is elements of business environment. So here
you have to be change witness over the last few years on mode of packaging and its economic impact. Okay, so you have to be focus कि कैसे जो पैकेजिंग है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, पैकेजिंग का क्या एक मेन इफेक्ट हो रहा है. नेक्स्ट यू हैव टू बी लुक आउट, जब आप एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की फाइल बना रहे हैं, you have to be look out the changes in transportation of fruits and vegetables such as cardboard carts being used in place of wooden carts etc. तो इसमें आपने ये देखना है कि पहले जो गुड्स सप्लाई होते थे वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, एंड नाउ डेज हाउ द फ्रूट्स हाउ द वेजिटेबल्स बी ट्रांसपोर्टेड. ओके, ये उसमें डालना है. नेक्स्ट, like milk being supplied in glass bottles, later in plastic bags and now in a टेट्रा पैक एंड थ्रो वेंडिंग मशीन्स. तो वेंडिंग मशीन्स के थ्रू भी मिल्क पैकेट कंज्यूमर को सप्लाई किए जाते हैं और पहले वो ग्लास बॉटल में, अदर प्लास्टिक बैग्स में वो मिलता था. नेक्स्ट, प्लास्टिक फर्नीचर, डोर्स एंड स्टूल्स गेनिंग प्रेफरेंस ओवर वुडन फर्नीचर्स. ओके, तो जो प्लास्टिक के फर्नीचर्स हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस गेट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द वुडन फर्नीचर. तो ये आपने इन्वायरमेंट में डालना है. नेक्स्ट, और क्या उसमें टॉपिक आप चूज कर सकते हैं, और क्या उसमें आपने डालना है, द ओरिजिन ऑफ कार्डबोर्ड एंड द वेरियस स्टेजेस ऑफ चेंजेस एंड ग्रोथ. ठीक है, कार्डबोर्ड का कैसे ओरिजिन हुआ और कैसे कैसे इसने ग्रोथ गेट करी, इसकी स्टेजेस को आप लिखेंगे. देन ब्राउन पेपर बैग पैकेजिंग टू रिसाइकल पेपर बैग्स टू प्लास्टिक बैग्स एंड क्लॉथ बैग्स. सो हाउ द ब्राउन पेपर बैग्स पैकेजिंग स्टार्ट, क्योंकि वो रिसाइकल भी हो जाता है. ठीक है, और इन द प्लास्टिक बैग्स एंड ही एलिमिनेटेड द प्लास्टिक बैग्स. ओके, एंड क्लॉथ बैग ऑल्सो पीपल्स आर स्टार्टेड कैरिंग विद देम. सो नेक्स्ट, रीयूज ऑफ पैकेजिंग बॉटल्स, जार्स, टेंस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स फॉर देयर प्रोडक्ट. तो कैसे आप जो पैकेजिंग है, जो मैन्युफैक्चरर है, किस तरह से वो बॉटल का, जार का और टिन का रिसाइकल्ड करते हैं और अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामिड पैकेजिंग फॉर मिल्क, किस तरह से जो पैकेजिंग की जो मिल्क का जो पैकेजिंग है वो कैसे कैसे चेंज हुआ है. नेक्स्ट, कॉस्ट बीइंग बोर्न बाय द कस्टमर्स मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर, किस तरह से कंज्यूमर्स और मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू कॉस्ट लगती है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, और कम से कम लगनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लागत उसमें आनी चाहिए. पैकेजिंग यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग किस तरह से एक एडवर्टीजमेंट का बेस्ट तरीका बना है. तो आप जो फाइल बनाएंगे एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसमें ये सारे टॉपिक आपके कंटेंट में आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, जैसे कि कोका कोला एंड द फैंटा इज द सेंसिटिव्स टू थम्स अप एंड कैंपा कोला इन द 18th, द पेप्सी कोक इन 19th. तो पहले कौन सा चलता था, फिर कौन सा चलता था. ठीक है, तो यू हैव टू बी लुक आउट कि इंडिया में कोका कोला की सोल्ड क्या है, फैंटा विच वो बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय फॉरेन कंपनीज, इसका क्या कैसे चल रहा है. तो यू हैव टू बी इंक्वायर अबाउट, आपने इंक्वायरी करनी है, रीजन गेट करना है ऑफ स्टॉपिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एबव मेंशन्ड ड्रिंक. ठीक है, अब पहले कितना प्रोडक्शन होता था, अब कितना प्रोडक्शन होता है. देन द इंट्रोडक्शन ऑफ थम्स अप, अगर आपने थम्स अप का लिया है तो थम्स अप का आप इंट्रोडक्शन देंगे. ठीक है, कैंपा कोला रेंज. देन री एंट्री ऑफ कोक, किस तरह कोक ने री एंट्री करी. फिर आपने पेप्सी को इंट्रोड्यूस करना है जो कि इंडियन मार्केट में बहुत फ्रूटफुली वर्क कर रहा है. फिर आपने बताना है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस. फिर आपका नेक्स्ट पेपर आ जाता है कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके चेंजेस में रिस्पॉन्सिबल हैं. नेक्स्ट, अदर लिंकेज विद द एबव, और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपने डालनी है. देन लीडिंग ब्रांड्स एंड द कंपनी हैविंग द हाईएस्ट मार्केट शेयर, उस कंपनी के बारे में आपने लिखना है जो कि जिसका ब्रांड बहुत ज़्यादा चल रहा है ये कोल्ड ड्रिंक्स में. ठीक है, एंड डिफरेंट लोकल ब्रांड्स वेंचरिंग इन द इंडियन मार्केट, और कौन कौन से अदर ऐसे ब्रांड्स हैं जो इंडियन मार्केट में चल रहे हैं. फिर है द रेटिंग ऑफ द अबव ब्रांड इन द मार्केट, जो हमने ऊपर ब्रांड्स की बात की है उसके मार्केटिंग के बारे में. फिर द सर्वाइवल एंड रीजन ऑफ द फेलियर इन कंपटीशन विद द इंटरनेशनल ब्रांड्स, क्यों वो इंटरनेशनल ब्रांड्स के मुकाबले इतना बढ़िया नहीं कर पाते.
देन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द स्टूडेंट, फिर आप लोग ने क्या उसमें ऑब्जर्व किया वो अपने फाइल में ऐड करना है, ये हो गई सेकेंड। फिर है नेक्स्ट, और क्या आप उसमें डेवलप करने के लिए कैसे आप उसमें और डालेंगे, चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन द पास्ट 25 related to the joint families, nuclear families, women's as a brand earners of the family, changes in the requirement trends of mixers, washing machines, microwaves and standard of living। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें भी आपने ध्यान देनी है। अगर आप इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं उसमें आप मशीन्स ऐड करेंगे कि कैसे पहले जो वुमेन्स थी दे यूज टू वर्क विद देयर ओन हैंड्स, बट नाउ देयर लाइफ स्टैंडर्ड ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ द मशीन्स। देन नेक्स्ट और क्या ऐड करेंगे, द चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है। ठीक है, देन द ट्रेंड इन द चेंजिंग इंटरेस्ट रेट, देयर इफेक्ट्स ऑफ सेविंग, अब सेविंग कैसे बढ़ रही है और कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देन द स्टडी ऑन चाइल्ड लेबर लॉज, इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉन्सिक्वेंस, चाइल्ड लेबर लॉ से क्या क्या इसका पॉजिटिव इसके इफेक्ट हैं, क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। देन नेक्स्ट द स्टेटस ऑफ एंटी प्लास्टिक कैंपेनियन, द लॉ, इट्स इफेक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस, जो प्लास्टिक कैंपेनियन है, एंटी प्लास्टिक कैंपेनियन चलाया है, इसके क्या इफेक्ट्स हुए हैं, क्या कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, द लॉज ऑफ माइनिंग, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, रूल एंड रेगुलेशंस, लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड्स फॉर रनिंग द बिजनेस, कोई भी बिजनेस अगर रन कर रहा है, माइनिंग अगर वो करता है या कोई इंडस्ट्री सेट करनी है, क्या उसके रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो आपने उसमें मेंशन कर रहे हैं। देन सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शंस ऑफ द आइडेंटिफाई प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को की आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसका ट्रेडमार्क, उसका लोगो, उसकी टैग लाइन्स। ओके, देन व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट ऑफ द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस टाइप का पहले जो गुड्स चलता था, सर्विसेज चलती थी, अब वो चेंज हुई हैं, वो आपने डालना है इन्वायरमेंट के अंदर। वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव, मिक्सचर्स, ग्राइंडर्स, ये कुछ नए ऐसे प्रोडक्ट आए हैं जिन्होंने पीपल के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया है। नीड फॉर स्ट्रीट डे केयर सेंटर्स फॉर द यंग एंड ओल्ड, रेडी टू ईट फूड, ईटिंग फूड आउटसाइड एंड टिफिन सेंटर्स, इसके बारे में आप उसमें लिख सकते हैं। देन चेंज इन द मैन मशीन रेशियो विथ टेक्नोलॉजिकल एडवांस रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी का क्या चेंज हुआ है और एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर, उससे उस बिहेवियर कैसा चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप डाल सकते हैं अगर आप फर्स्ट प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक चूज कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उसमें ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट topic of your subject, your project is project 2, that is principles of management. So here you are required to visit but it is not possible to go in any departmental store, industrial unit, fast food outlets or in any organization. Okay, but all the 14 principles and F.W. Taylor's scientific 7 techniques has given. So according to the reading and the content you have understand from the book, you have to make a file. Topic is principles of management. Okay, so फॉइल ऑफ प्रिंसिपल्स के जितने भी आपको दे रखे हैं, मान लीजिए आपने कोई भी एक पर्टिकुलर फर्म को उठा लिया, एक फर्म आप घूम के आए, आपने वहाँ का ये चेक किया कि जितने भी 14 प्रिंसिपल्स हैं क्या वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं और किस तरह से अप्लाई होते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई होता है नहीं, यूनिटी ऑफ कमांड, unity of direction, scalar chain, spread the crops. So all these 14 principles either they implementing or not. If they are not implementing, what the consequence they are suffering? If they are implementing, what are the benefits they are rendering? Fine. Next आपको इसी तरह या तो आप फॉइल का करिए या आप साइंटिफिक टेक्निक्स ले लीजिए F.W. टेलर्स की। ठीक है, so it is very much easy for you to choose any of the industry, any of the firm and look out all these things whether they are doing or not. So what you have to be do after your observation, मान लीजिए आपने देखा, ऑब्जर्व किया, then the different stage of division of work resulting to specialization, आपने क्या वहाँ पे चेक किया, वर्क कैसे हो रहा है ये आपने चेक किया होगा। देन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू हायर अथॉरिटीज़, जिन जिन से आपने बात की है, इंस्ट्रक्शन आपको मिले हैं
आपने हायर अथॉरिटी और सबके बारे सबसे बात किया है, उनके कैसे व्यूज़ हैं, ठीक है। विजिबिलिटी देखना आपने, इक्विटी है या नहीं है, इक्वालिटी सब में है या नहीं है, बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है या नहीं है, कम्युनिकेशन लेवल क्या है। तो मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन गए हैं, वहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, तो उसके बेस पर आपने प्रोजेक्ट सेकंड बनाना है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। Okay, then what are the methods they are using for unity of direction in their organization, what their wage payments, okay, and what either they are following time study or not, and what the advantages they are taking from the method study, because you all have read well, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं चैप्टर सेकेंड में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, next project is project 3, that is stock exchange. So you all know about stock exchange because right beginning from your class 11th you are studying about stock exchange. It is a particular market where the company easily sell the securities for the general public, and general public get the chance to purchase their shares, okay, if they are in a surplus amount they are earning, फाइन। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, आप इससे रिलेटेड कोई जो आप टॉपिक बना रहे हैं, अगर आप इससे बना रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स है, उसमें आपको इजीली किसी भी कंपनी को आप ले लीजिए, उसकी बैलेंस शीट, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें निकलेगा, ठीक है। इसका मेन पर्पज़ है दैट वी मस्ट टीच यू द वैल्यूज़ एंड इन्वेस्टिंग एंड यूटिलाइजिंग द स्टॉक मार्केट। आप किस तरह स्टॉक मार्केट को यूटिलाइज कर सकते हैं, इस वजह से हम स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर फाइल बनाते हैं, ओके। सो द बेसिस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू अर्न अबाउट द स्टॉक मार्केट वाइल इन्वेस्टिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फेक मनी इन अ सर्टेन स्टॉक, और स्टूडेंट देन स्टडी द रिजल्ट एंड बाय सेल्स ऑफ एनी CF। अब आप इसको न्यूज़ में भी देख सकते हैं, ठीक है, कि स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह से काम होता है, किस तरह से कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ओके। So what the following things you will do in this? So you have to be monitor stock market trend, आपने monitor करना है market trend को, and will calculate the profit and loss of the stock, ठीक है। फिर आपने फाइंड आउट करना है कि उस कंपनी ने स्टार्टिंग में कितने शेयर्स इशू किए थे, ठीक है, और बाद में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है। एंड वाइल यू आर एनेबलिंग दिस प्रोजेक्ट, जब आप इसको बना रहे होंगे, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड अ टॉपिक लाइक सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट। आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है। देन नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यूजिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, कौन कौन से कॉन्सेप्ट स्टॉक एक्सचेंज में यूज होते हैं ये भी आपको पता चलेगा। देन इंक्लूड द हैबिट ऑफ वॉचिंग बिजनेस चैनल्स एंड रीडिंग बिजनेस, इससे आप क्या होंगे, आप बिजनेस जो चैनल्स हैं उनको देखने की आपकी हैबिट बढ़ेगी, ठीक है, और आपका बिजनेस रीडिंग का भी हैबिट बढ़ेगा, ठीक है। इसमें यू विल अंडरस्टैंड द जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर एल्डर्स, जो आपके एल्डर्स हैं उनको भी आप इजीली बता सकते हैं, ओके। सो यू हैव टू बी डेवलप अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन हिस्ट्री ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी ब्रीफ हिस्ट्री निकालनी है, ठीक है। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ 25 कंपनीज, 25 कंपनीज के आपने नेम लिखने हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं, एंड टू मेक एन इमेजनरी प्रोटोफॉल totaling a sum of rupees 50,000 equally in any of 5 companies of their choice listed above over period of 20 working days, ठीक है। आपने ये निकालना है कि उन सभी में से कोई 5 टॉप की कंपनीज आपने निकालनी है, और उन कंपनीज का आपने 20 डेज, 20 जो वर्किंग डेज है उनका आपने लमसम निकालना है कि कितना उन्होंने वर्क किया है, और उनका टोटलिंग निकालना है, ठीक है, ओके। देन you will understand the weekly holidays and holidays under the negotiable instrument act कि किस तरह से उनको holidays मिलती हैं। then they'll also be come across with a term like closing price, आपको closing price के बारे में पता चलेगा, opening price के बारे में पता चलेगा, ठीक है। you have to keep recording the time of the companies issuing the shares, ठीक है। closing price आप देखेंगे, starting price देखेंगे, ठीक है। वीकली अदर डेज अंडर द नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंड यू मस्ट गेट द नॉलेज अबाउट द क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइजेस,
एंड यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द कॉज इन अ फ्लैक्चुएशन ऑफ प्राइजेस. प्राइजेस क्यों बढ़ती हैं, क्यों घटती हैं, ये भी आपको ईजिली यू विल गेट द इंफॉर्मेशन. नॉर्मली इट विल बी रिलेटेड टू द फ्रंट पेज न्यूज़ ऑफ द बिजनेस जर्नल. ठीक है, वैसे ये जो न्यूज़ होती है प्राइस के बढ़ने घटने की, वो आपको बिजनेस का जो न्यूज़पेपर है उसके स्टार्टिंग में मिल जाएगी. जैसे क्या क्या कारण होते हैं जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस के बढ़ने और घटने का कारण रहता है. एक तो चेंजेस ऑफ सीजन्स के कारण भी कभी लोग पैसा लगाते हैं, कभी नहीं लगाते. फेस्टिवल्स, जब फेस्टिवल्स ज़्यादा हैं तो लोग शेयर मार्केट में पैसा कम लगाते हैं, फेस्टिवल्स में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं. ठीक है, एंड स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स, कोई अनसर्टिनिटी हो जाती है. ठीक है, तो उसमें भी लोगों का पैसा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है रादर देन दे वर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. ठीक है, स्ट्राइक हो गया, एक्सीडेंट्स हो गया, नेचुरल ह्यूमन डिजास्टर्स हो गए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, लेक ऑफ फेथ इन अ गवर्नमेंट पॉलिसीज. जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर भी फेक नहीं, भरोसा नहीं होता, तो उस कंडीशन में भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स पैसा कम लगाते हैं. देन इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्री. देन इंडस्ट्रियल इवेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, ट्रेटरीज हैं, कोई स्ट्रैटेजी है इंटरनेशनल सीन्स की, रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज. ओके, तो ये कुछ कारण रहते हैं जिनसे या तो स्टॉक मार्केट में लोग बहुत पैसा लगाते हैं या स्टॉक मार्केट का प्राइस डूब जाता है. ठीक है, सो यू हैव टू प्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज 5 कंपनीज यू विल टेक, होम यू विल टेक. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है आपने. ठीक है, शेयर प्राइस ऑफ डिफरेंट कंपनीज एट डिफरेंट डेट्स, डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट उनके प्राइस का ग्राफिकली प्रेजेंट करना है. ठीक है, देन चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, उनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितना चेंज हुई सीजन के अकॉर्डिंग, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, नेचुरल ह्यूमन डिजास्टर्स के टाइम पर. ठीक है, कितना बढ़ा कितना घटा ये बताना है आपने. ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ड्यू टू चेंज इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. ठीक है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से कितना शेयर का प्राइस में फ्लक्चुएशंस आया है, मार्केट वैल्यू में चेंजेस आए हैं. पॉलिसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज, क्राइसिस इन डेवलप्ड कंट्रीज और एनी अदर रीजंस. ठीक है, देन आइडेंटिफाई द टॉप 10 कंपनीज आउट ऑफ 25 सेलेक्टेड. उसके बाद आपने 25 में से टॉप की 10 कंपनीज को लेना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स. मार्केट वैल्यू जितनी ज़्यादा जिस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की ज़्यादा है उसको आपने उतना टॉप में रखना और 10 ऐसी कंपनीज को हमें लेना है. ठीक है, एंड वी हैव टू बी व्हाट यू हैव टू बी डू इन अ फाइल. इट डज नॉट मैटर इफ दे हैव मेड प्रॉफिट और लॉस. वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इससे कोई मैटर नहीं है. आपने टॉप की जो 10 कंपनीज लेनी है उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने स्टॉक एक्सचेंज फाइल में बनानी है. दिस इज योर प्रोजेक्ट, दिस वॉज प्रोजेक्ट नंबर 3. नाउ प्रोजेक्ट 4. अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट 4 की. सो प्रोजेक्ट 4 इज ऑफ मार्केटिंग. ये आपका मार्केटिंग बेस्ड ऑन है. इसमें आपको टोटल 77 टॉपिक दिए हुए हैं, आर्टिकल्स दिए हुए हैं. आप किसी भी एक आर्टिकल को चूज कर सकते हैं, टॉपिक को चूज कर सकते हैं, कोई भी आप उठा सकते हैं इसमें से. ठीक है, एनी ऑफ योर ओन चॉइस, फाइन. देन व्हाट यू हैव टू बी डू. अब आपने उसका क्या करना है, कोई भी आपने एक प्रोडक्ट उठाना है. देन यू हैव टू बी इंश्योर दैट द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट जो आपने उठाया है शुड नॉट बी आइटम्स हुज कंजम्पशन यूज इन discouraged by the society and government like alcohol product, पान मसाला, tobacco product etc. वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जिसको गवर्नमेंट और सोसाइटी के द्वारा डिस्करेज किया गया है. ठीक है, जैसे अल्कोहल है, पान मसाला, टोबैको, ये सारे हैं. ठीक है, नाउ द प्रोडक्ट विच यू हैव आइडेंटिफाई, जो आपने चूज किया है, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो सर्विस है, ऊपर जितने भी दे रखे हैं 77 उसमें से एक. ठीक है, आपने कोई भी एक उसको चूज कर लेना है, चाहे वो मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो या वो प्रोवाइड किया जा रहा हो. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट और सर्विस कीपिंग इन माइंड ऑफ द फॉलोइंग. ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है उस प्रोडक्ट को चूज करने के बाद. क्या क्या होंगी, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ. सो वाई हैव दे सेलेक्टेड दिस प्रोडक्ट एंड सर्विस. जो भी आपने वो प्रोडक्ट को चूज किया है उसको क्यों चूज किया है. दिस इज योर पॉइंट नंबर फर्स्ट. वाई हैव दे सेलेक्टेड दिस प्रोडक्ट सर्विस. इस प्रोडक्ट सर्विस को आपने क्यों सिलेक्ट किया है वो आना चाहिए. नेक्स्ट,
फाइंड आउट 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट। अब आपने जिस प्रोडक्ट को चूज किया है उस प्रोडक्ट के अदर मार्केट में जो 5 कॉम्पिटिटर्स हैं या 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं उनके बारे में आपने बताना है कि वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, व्हाट परमिशन एंड लाइसेंस वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को बनाने में आपको क्या परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ी थी या क्या लाइसेंस रिक्वायरमेंट था नहीं था, वो आपने डालना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉम्पिटिटर्स यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस। ठीक है, कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आपका प्रोडक्ट कैसे यूनिक है, जिसको हम यूएसपी भी कहते हैं, कॉम्पिटिटर्स यूनिक, और वी कैन से यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस। ओके, देन नेक्स्ट, डज योर प्रोडक्ट हैव एनी रेंज, गिव डिटेल्स। कोई रेंज है, कोई पर्टिकुलर प्राइस। देन व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है। एनलिस्ट इट्स फीचर्स, उसके फीचर्स बताने हैं, उसका लेबल बताना है, उसका लोगो क्या है, उसका टैग लाइन क्या है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ द कंज्यूमर्स, प्राइस ऑफ द रिटेलर, प्राइस ऑफ द होलसेलर, होलसेलर से वो कितने प्राइस में निकलता है, रिटेलर में कितने में बेच रहा है और कंज्यूमर तक कितने में पहुंच रहा है। देन व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन इन द परसेंटेज टू द मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। मैन्युफैक्चरर कितना फायदा गेट करता है, कितना मार्जिन होलसेलर गेट कर रहा है, एंड हाउ मच रिटेलर गेटिंग द मार्जिन। ओके, देन नेक्स्ट, हाउ विल यू प्रोडक्ट बी पैक्ड, वो प्रोडक्ट आपका किस तरह से पैक होता है। ठीक है, एंड देन which channel of distribution are you going to use, give reason for selection, कौन सा आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देन डिसीजन रिलेटेड टू वेयर हाउसिंग स्टेट रीजन्स। ठीक है, क्या आप वेयर हाउसिंग यूज करेंगे, किस कारण से आप वेयर हाउसिंग यूज करना चाहते हैं। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी योर सेलिंग प्राइस, क्या आपकी सेलिंग प्राइस होगी उस प्रोडक्ट की। कंज्यूमर क्या पे करेगा, रिटेलर क्या पे करेगा, होलसेलर क्या पे करेगा। ठीक है, देन लिस्ट 5 वेज ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट। अब आपने 5 तरीके बताने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के। एनी स्कीम फॉर होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, कोई भी आप स्कीम होलसेलर के लिए, जैसे डिस्काउंट हो जाते हैं, कूपन्स हो जाते हैं, एक के साथ दूसरा फ्री है। ठीक है, बाय 2 get 1 फ्री, ये वाला डालना चाहते हैं। ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू बी योर यूएसपी। ठीक है, देन व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू विल बी यूज एंड वाई, कौन सा तरीका आप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करेंगे और क्यों। देन सोशल, ड्राफ्ट अ सोशल मैसेज फॉर योर लेबल, अपने लेबल के साथ क्या आप सोशल मैसेज इंडिकेट करना चाहते हैं। एंड व्हाट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक वी विल फॉलो फॉर योर प्रोडक्ट, अब कौन सी ऐसी टेक्निक आप यूज़ करेंगे जिससे आपके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। अब आप कैसे, प्रमोशन का प्लान क्या रहेगा आपका, मार्केटिंग मिक्स में आप कैसे अपने प्रोडक्ट को पहुँचाएंगे। मेन 4 चीज़ें की हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। तो ये 4 चीज़ों के बारे में आपने उसमें बताना है कि आपने किस तरीके से अपने प्रोडक्ट में P4 का यूज़ किया है फॉर द मार्केटिंग। देन ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन बाय द स्टूडेंट, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट यू हैव टू बी इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स। जब आप उसको बना लेते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए। टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, सर्विड, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन्वॉल्व देयर, ब्रांड नेम, range of the product, identify mark or the logo, tag lines, labeling, packaging, price of the product. ठीक है, sealed channels of distributions, decision related to transportation, warehousing. ठीक है, then promotional technique कौन सा आपने यूज़ किया है, ग्रांडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप अपने प्रोडक्ट के बाद उसमें इंडिकेट, फाइल में इंडिकेट करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, नाउ presentation and submissions of project report. Fine. So here you have to be as the end of the stipulated term, जैसे ही आपका फाइल पूरा कंप्लीट हो जाता है, you have to submit your file to school, and I already told you that the following essentials are required to be fulfilled for its presentation and submission. Like the total length of the project will be 25 to 30 pages. The project should be handwritten. The project should be presented in a neat folder. Very much clear this one कि clean होना चाहिए. The project card should be developed in the following sequence. ये सारे sequence होने चाहिए, जैसे cover page should include the title of the project. सबसे पहले title of the project आएगा, फिर student information, ठीक है, school and year, list of content, ठीक है, ये आपको स्क्रीन में दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट एंड
प्रिफेस, जिसमें आप एक्नॉलेजिंग द इंस्टीट्यूशन, स्कूल का नेम, द प्लेस विजिट्स, किस जगह पर आप घूमे, कहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन ली, पर्सन हु हैव हेल्प्ड, आपको किस पर्टिकुलर पर्सन ने हेल्प किया, देन इंट्रोडक्शन, देन टॉपिक विद द सूटेबल हेडिंग, आप अपने उसको जो भी आपका आपने बनाया है उसको सूटेबल हेडिंग देंगे, प्लानिंग एक्टिविटीज़ डन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, आपने कौन कौन सी प्लानिंग करी, कैसे कैसे एक्टिविटीज़ करी, देन ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग ऑफ द विजिट, देन कंक्लूजन आएगा उसमें, ठीक है, जिसमें आप समराइज करेंगे, सजेशन देंगे, ठीक है, और फाइंडिंग फ्यूचर स्कोप ऑफ द स्टडी, फोटोग्राफ्स उसमें लगाएंगे अगर है तो, फाइन, अपेंडिक्स हो गया, कहाँ कहाँ से आपने हेल्प लिया है, टीचर्स ऑब्जर्वेशन रहेगा, देन सिग्नेचर ऑफ द टीचर्स, एंड एट द कंप्लीशन ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जब आप पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, इट शुड बी पंच्ड इन अ सेंटर सो दैट द रिपोर्ट मे नॉट बी reused but in available for the reference only, ठीक है, then you have to be submit your project to the your subject teacher, fine. So I already explained you in beginning that allocation of marks is 20, initiative, cooperativeness and participation you will get 2 marks, creativity in presentation 2 marks, content observation and research work 4 marks, analysis of situations 4 mark, viva 8 marks, so total 20 marks. So you have 80 marks for your written exam and 20 marks for your project work, okay. So I think this information is very much enough for you to making the file. So all the best, thank you and have a nice day. Hello student, today I am telling you something about how you have to make your project work in your business studies for class 12th, okay. So let me begin with, as the total weightage is of 20 marks and total project you have to make 1 file, chapters and topic you have to choose 1 out of 4. Now what the 4 topics you have given by CBC, I'll tell you briefly in this video. Next, allocation of marks is of 20 marks. First, initiative, cooperativeness and participation is of 2 marks. आप कितना इनिशिएटिव लेते हैं, कितना आप कॉपरेट करते हैं, आपके फाइल में दिखना चाहिए, कितना आपने उसमें पार्टिसिपेशन किया है. Out of all these you get 2 marks. Then second, creativity in preparation, how you have made your file, what are the creativity you have shown in your file, you will get 2 marks. Then third, content observation and research work, from where you get the content, what your observation towards the content, आपका क्या observation है उस content के base जो आप content लिख रहे हैं अपने file में, and what you have do the research for the work, you will get 4 marks of this. Next, analysis of situations, so how you have analyze the situation, कैसे आपने situation को analyze किया, how you are presenting your situation after analyzing, you will get 4 marks. And last, viva, this is of 8 marks, you will get the question from your examiner based on the topic which you have made the file. जिस टॉपिक पे आपने फाइल बनाई है उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे few question the examiner will conduct and you have to give the answer, okay. Clear this much? Okay, next, now one chapter means the topic out of 4. So CBC बोर्ड ने आपको 4 टॉपिक दिए हैं, 4 टॉपिक में से आपने किसी एक टॉपिक को चूज करना है. You have 4 topics in your screen. First is elements of business environment. Second, principle of management. These 2 topics you will found in your first book, fine, in your first part A, okay. Then next, stock exchange and fourth, marketing management. ये 2 टॉपिक आपके सेकेंड बुक से लिए गए हैं, fine. So out of these 4 topic you have to choose only one and you have to make a file. Now one project file essential. So
आप एक प्रोजेक्ट को चूज करेंगे और उस प्रोजेक्ट के बेस पे आपने फाइल बनानी है. What are the following things you have to keep in your mind while you are making the file? First of all, the paper contained in your file is of 25 to 30 pages. Okay. Second, the file should be written by your hand. So it must be handwritten, not typed, not written by any other. It is your own handwritten file. Next, presented in folder. So you have to keep all the pages, your handwritten, in particular folder. And last, must be in a specific sequence. एक particular sequence होता है, उस sequence के according आपने अपनी फाइल को उस folder में present करना है. Okay. Now these are the few important things you have to keep in your mind while before starting your file. Okay. It is very much essential, very much important that how you are presenting your file. Because जैसे जैसे आप अपने फाइल को बनाएंगे उससे आपको भी एक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. Fine. Now students are supposed to select one unit out of the 4 I told you. So are required to make only one project from the schedule unit. So consist of one project of 20 marks. Fine. Now first of all we will discuss about here the project 1. So all the detailed information is given in your screen. Project 1. So project 1, the topic is elements of business environment. So here you have to be change witness over the last few years on mode of packaging and its economic impact. Okay. So you have to be focus कि कैसे जो पैकेजिंग है इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, पैकेजिंग का क्या एक मेन इफेक्ट हो रहा है. नेक्स्ट यू हैव टू बी लुक आउट, जब आप एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की फाइल बना रहे हैं, you have to be look out the changes in transportation of fruits and vegetables such as cardboard carts being used in place of wooden carts etc. तो इसमें आपने ये देखना है कि पहले जो गुड्स सप्लाई होते थे वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट किए जाते थे एंड नाउ डेज हाउ द फ्रूट्स हाउ द वेजिटेबल्स बी ट्रांसपोर्टेड. ओके, ये उसमें डालना है. नेक्स्ट, like milk being supplied in glass bottles, later in plastic bags and now in a tetra pack and through vending machines. तो vending machines के थ्रू भी मिल्क पैकेट कंज्यूमर्स को सप्लाई किए जाते हैं और पहले वो ग्लास बॉटल में अदर प्लास्टिक बैग्स में वो मिलता था. नेक्स्ट, प्लास्टिक फर्नीचर, डोर्स एंड स्टूल्स गेनिंग प्रेफरेंस ओवर वुडन फर्नीचर्स. ओके, तो जो प्लास्टिक के फर्नीचर्स हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस गेट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द वुडन फर्नीचर. तो ये आपने इन्वायरमेंट में डालना है. नेक्स्ट, और क्या उसमें टॉपिक आप चूज कर सकते हैं, और क्या उसमें आपने डालना है, द ओरिजिन ऑफ कार्डबोर्ड एंड द वेरियस स्टेजेस ऑफ चेंजेस एंड ग्रोथ. ठीक है, कार्डबोर्ड का कैसे ओरिजिन हुआ और कैसे कैसे इसने ग्रोथ गेट करी, इसकी स्टेजेस को आप लिखेंगे. देन ब्राउन पेपर बैग पैकेजिंग to recycle paper bags to plastic bags and cloth bags. So how the brown paper bags packaging start, क्योंकि वो recycle भी हो जाता है. ठीक है, और the plastic bags and he eliminated the plastic bags. Okay, and cloth bag also people are started carrying with them. So next, reuse of packaging bottles, jars, tins to attract customers for their product. तो कैसे आप जो पैकेजिंग है, जो मैन्युफैक्चरर है, किस तरह से वो बॉटल का, जार का और टिन का रिसाइकल्ड करते हैं और अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ पिरामिड पैकेजिंग फॉर मिल्क, किस तरह से जो पैकेजिंग की जो मिल्क का जो पैकेजिंग है वो कैसे कैसे चेंज हुआ है. नेक्स्ट, कॉस्ट बीइंग बोर्न बाय द कस्टमर्स मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर, किस तरह से कंज्यूमर्स और मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू कॉस्ट लगती है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, और कम से कम लगनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लागत उसमें आनी चाहिए. पैकेजिंग यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग किस तरह से एक एडवर्टीजमेंट का बेस्ट तरीका बनाए. तो आप जो फाइल बनाएंगे एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसमें ये सारे टॉपिक आपके कंटेंट में आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, जैसे कि कोका कोला एंड द फैंटा
is the sensitives to thumbs up and Campa Cola. In the 18th the Pepsi Coke. in 19th तो पहले कौन सा चलता था फिर कौन सा चलता था, ठीक है। तो यू हैव टू बी लुक आउट कि इंडिया में कोका कोला की सोल्ड क्या है, फेंटा विच वो बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय फॉरेन कंपनीज, इसका क्या कैसे चल रहा है। तो यू हैव टू बी इंक्वायर अबाउट, आपने इंक्वायरी करनी है, रीजन गेट करना है ऑफ स्टॉपिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एबव मेंशन ड्रिंक, ठीक है। अब इन पहले पहले कितना प्रोडक्शन होता था, अब कितना प्रोडक्शन होता है। देन द इंट्रोडक्शन ऑफ थम्स अप, अगर आपने थम्स अप का लिया है तो थम्स अप का आप इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। कैंपा कोला रेंज, देन री एंट्री ऑफ कोक, किस तरह कोक ने री एंट्री करी, फिर आपने पेप्सी को इंट्रोड्यूस करना है जो कि इंडियन मार्केट में बहुत फ्रूटफुली वर्क कर रहा है। फिर आपने बताना है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस, फिर आपका नेक्स्ट पेपर आ जाता है कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके चेंजेस में रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट अदर लिंकेज विद द एबव, और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपने डालनी है। देन लीडिंग ब्रांड्स एंड द कंपनी हैविंग द हाईएस्ट मार्केट शेयर, उस कंपनी के बारे में आपने लिखना है जो कि जिसका ब्रांड बहुत ज़्यादा चल रहा है ये कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक है। एंड डिफरेंट लोकल ब्रांड्स वेंचरिंग इन द इंडियन मार्केट, और कौन कौन से अदर ऐसे ब्रांड्स हैं जो इंडियन मार्केट में चल रहे हैं। फिर है द रेटिंग ऑफ द अबव ब्रांड इन द मार्केट, जो हमने ऊपर ब्रांड्स की बात की है उसके मार्केटिंग के बारे में। फिर द सर्वाइवल एंड रीजन ऑफ द फेलियर इन कंपटीशन विद द इंटरनेशनल ब्रांड्स, क्यों वो इंटरनेशनल ब्रांड्स के मुकाबले इतना बढ़िया नहीं कर पाते। देन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द स्टूडेंट, फिर आप लोग ने क्या उसमें ऑब्जर्व किया वो अपने फाइल में ऐड करना है, ये हो गई सेकेंड। फिर है नेक्स्ट, और क्या आप उसमें डेवलप करने के लिए कैसे आप उसमें और डालेंगे। चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन द पास्ट 25 related to the joint families, nuclear families, women's as a brand owners of the family, changes in the requirement trends of mixers, washing machines, microwaves and standard of living, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भी आपने ध्यान देनी है। अगर आप इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं उसमें आप मशीन्स ऐड करेंगे कि कैसे पहले जो वुमेन्स थी दे यूज टू वर्क विद देयर ओन हैंड्स, बट नाउ देयर लाइफ स्टैंडर्ड ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ द मशीन्स। देन नेक्स्ट और क्या ऐड करेंगे, द चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है। देन द ट्रेंड इन द चेंजिंग इंटरेस्ट रेट, देयर इफेक्ट्स ऑफ सेविंग, अब सेविंग कैसे बढ़ रही है और कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देन द स्टडी ऑन चाइल्ड लेबर लॉज, इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉन्सिक्वेंस, चाइल्ड लेबर लॉ से क्या क्या इसका पॉजिटिव इसके इफेक्ट हैं, क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। देन नेक्स्ट द स्टेटस ऑफ एंटी प्लास्टिक कैंपेनियन, द लॉ, इट्स इफेक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस, जो प्लास्टिक कैंपेनियन है एंटी प्लास्टिक कैंपेनियन चलाया है इसके क्या इफेक्ट्स हुए हैं, क्या कैसे कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। द लॉज ऑफ माइनिंग, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, रूल एंड रेगुलेशंस, लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द बिजनेस, कोई भी बिजनेस अगर रन कर रहा है, माइनिंग अगर वो करता है या कोई इंडस्ट्री सेट करनी है, क्या उसके रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो आपने उसमें मेंशन करने हैं। देन सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शंस ऑफ द आइडेंटिफाई प्रोडक्ट, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को की आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसका ट्रेडमार्क, उसका लोगो, उसकी टैग लाइन्स, ओके। देन व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट ऑफ द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस टाइप का पहले जो गुड्स चलता था, सर्विसेज चलती थी, अब वो चेंज हुई हैं, वो आपने डालना है इन्वायरमेंट के अंदर। वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव, मिक्सचर्स, ग्राइंडर्स, ये कुछ नए ऐसे प्रोडक्ट आए हैं जिन्होंने पीपल के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया है। नीड फॉर स्ट्रीट डे केयर सेंटर्स फॉर द यंग एंड ओल्ड, रेडी टू ईट फूड, ईटिंग फूड आउटसाइड एंड टिफिन सेंटर्स, इसके बारे में आप उसमें लिख सकते हैं। देन चेंज इन द मैन मशीन रेशियो विथ टेक्नोलॉजिकल एडवांस रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी का क्या चेंज हुआ है और एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर, उससे उस बिहेवियर कैसा चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप डाल सकते हैं अगर आप फर्स्ट प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक चूज़ कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उसमें ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट topic of your subject, your project is project 2, that is principles of management. So here you are required to visit
but it is not possible to go in any departmental store, industrial unit, fast food outlets, or in any organization. Okay, but all the 14 principles and F.W. Taylor's scientific 7 techniques has given. So according to the reading and the content you have understand from the book, you have to make a file. Topic is principles of management. Okay, so फॉइल ऑफ प्रिंसिपल्स के जितने भी आपको दे रखे हैं, मान लीजिए आपने कोई भी एक पर्टिकुलर फर्म को उठा लिया, एक फर्म आप घूम के आए, आपने वहाँ का ये चेक किया कि जितने भी 14 प्रिंसिपल्स हैं क्या वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं और किस तरह से अप्लाई होते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई होता है नहीं, यूनिटी ऑफ कमांड, unity of direction, scalar chain, spread the crops. So all these 14 principles, either they implementing or not. If they are not implementing, what the consequence they are suffering? If they are implementing, what are the benefits they are rendering? Fine. Next आपको इसी तरह या तो आप फॉइल के करिए या आप साइंटिफिक टेक्निक्स ले लीजिए F.W. टेलर्स की, ठीक है. So it is very much easy for you to choose any of the industry, any of the firm, and look out all these things whether they are doing or not. So what you have to be do after your observation, मान लीजिए आपने देखा, ऑब्जर्व किया, then the different stage of division of work resulting to specialization, आपने क्या वहाँ पे चेक किया, वर्क कैसे हो रहा है ये आपने चेक किया होगा. Then following instruction and accountability of subordinates to higher authorities, जिन से आपने बात की है, इंस्ट्रक्शन आपको मिले हैं, आपने हायर अथॉरिटी और सबसे बात की है, उनके कैसे व्यूज़ हैं, ठीक है. विजिबिलिटी देखना आपने, इक्विटी है या नहीं है, इक्वालिटी सब में है या नहीं है, बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है या नहीं है, कम्युनिकेशन लेवल क्या है. तो मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन गए हैं, वहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, तो उसके बेस पर आपने प्रोजेक्ट सेकंड बनाना है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है. Okay, then what are the methods they are using for unity of direction in their organization, what their wage payments, okay, and what either they are following time study or not, and what the advantages they are taking from the method study, because you all have read well, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं चैप्टर सेकेंड में, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, Next project is project 3, that is stock exchange. So you all know about stock exchange because right beginning from your class 11th you are studying about stock exchange. It is a particular market where the company easily sell the securities for the general public, and general public get the chance to purchase their shares, okay, if they are in a surplus amount they are earning. फाइन. तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, आप इससे रिलेटेड कोई जो आप टॉपिक बना रहे हैं, अगर आप इससे बना रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स है, उसमें आपको इजीली किसी भी कंपनी को आप ले लीजिए, उसकी बैलेंस शीट, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें निकलेगा, ठीक है. इसका मेन पर्पज़ है दैट वी मस्ट टीच यू द वैल्यूज़ एंड इन्वेस्टिंग एंड यूटिलाइजिंग द स्टॉक मार्केट. आप किस तरह स्टॉक मार्केट को यूटिलाइज कर सकते हैं, इस वजह से हम स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर फाइल बनाते हैं. ओके, सो द बेसिस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू अर्न अबाउट द स्टॉक मार्केट वाइल इन्वेस्टिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फेक मनी इन अ सर्टेन स्टॉक. और स्टूडेंट देन स्टडी द रिजल्ट एंड बाय सेल्स ऑफ एनी CF. अब आप इसको न्यूज़ में भी देख सकते हैं, ठीक है, कि स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह से काम होता है, किस तरह से कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. ओके, so what the following things you will do in this? So you have to be monitor stock market trend. आपने monitor करना है market trend को, and will calculate the profit and loss of the stock. ठीक है, फिर आपने फाइंड आउट करना है कि उस कंपनी ने स्टार्टिंग में कितने शेयर्स इशू किए थे, ठीक है, और बाद में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है. एंड वाइल यू आर एनेबलिंग दिस प्रोजेक्ट, जब आप इसको बना रहे होंगे, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड अ टॉपिक लाइक सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट. आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है. देन नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यूजिंग इन स्टॉक एक्सचेंज. कौन कौन से कॉन्सेप्ट स्टॉक एक्सचेंज में यूज होते हैं ये भी आपको पता चलेगा. देन इन
क्रिएट द हैबिट ऑफ वॉचिंग बिजनेस चैनल्स एंड रीडिंग बिजनेस। इससे आप क्या होंगे, आप बिजनेस जो चैनल्स हैं उनको देखने की आपकी हैबिट बढ़ेगी, ठीक है, और आपका बिजनेस रीडिंग का भी हैबिट बढ़ेगा, ठीक है। इसमें यू विल अंडरस्टैंड द जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर एल्डर्स। जो आपके एल्डर्स हैं उनको भी आप इजीली बता सकते हैं, ओके। सो यू हैव टू बी डेवलप अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन हिस्ट्री ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी ब्रीफ हिस्ट्री निकालनी है, ठीक है। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ 25 कंपनीज, 25 कंपनीज के आपने नेम लिखने हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं। एंड टू मेक एन इमेजनरी प्रोटोफॉल totaling a sum of rupees 50,000 equally in any of 5 companies of their choice listed above over period of 20 working days, ठीक है। आपने ये निकालना है कि उन सभी में से कोई 5 टॉप की कंपनीज आपने निकालनी है और उन कंपनीज का आपने 20 डेज, 20 जो वर्किंग डेज है उनका आपने लमसम निकालना है कि कितना उन्होंने वर्क किया है और उनका टोटलिंग निकालना है, ठीक है। ओके, देन you will understand the weekly holidays and holidays under the negotiable instrument act कि किस तरह से उनको holidays मिलती हैं। then they'll also be come across with a term like closing price। आपको closing price के बारे में पता चलेगा, opening price के बारे में पता चलेगा, ठीक है। you have to keep recording the time of the companies issuing the shares, ठीक है। closing price आप देखेंगे, starting price देखेंगे, ठीक है। वीकली अदर डेज अंडर द नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड यू मस्ट गेट द नॉलेज अबाउट द क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइजेस एंड यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द कॉज इन अ फ्लैक्चुएशन ऑफ प्राइजेस। प्राइजेस क्यों बढ़ती हैं, क्यों घटती हैं, ये भी आपको ईजिली यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। नॉर्मली इट विल बी रिलेटेड टू द फ्रंट पेज न्यूज़ ऑफ द बिजनेस जर्नल, ठीक है। वैसे ये जो न्यूज़ होती है प्राइस के बढ़ने घटने की वो आपको बिजनेस का जो न्यूज़पेपर है उसके स्टार्टिंग में मिल जाएगी। जैसे क्या क्या कारण होते हैं जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस के बढ़ने और घटने का कारण रहता है। एक तो चेंजेस ऑफ सीजन्स के कारण भी कभी लोग पैसा लगाते हैं, कभी नहीं लगाते। फेस्टिवल्स, जब फेस्टिवल्स ज़्यादा हैं तो लोग शेयर मार्केट में पैसा कम लगाते हैं, फेस्टिवल्स में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। एंड स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स, कोई अनसर्टिनिटी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें भी लोगों का पैसा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है रादर देन दे वर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्ट्राइक हो गया, एक्सीडेंट्स हो गया, नेचुरल ह्यूमन डिजास्टर्स हो गए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, लेक ऑफ फेथ इन अ गवर्नमेंट पॉलिसीज। जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर भी फेक नहीं, भरोसा नहीं होता तो उस कंडीशन में भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स पैसा कम लगाते हैं। देन इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्री। देन इंडस्ट्रियल इवेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, ट्रेटरीज है, कोई स्ट्रैटेजी है इंटरनेशनल सीन्स की, रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज, ओके। तो ये कुछ कारण रहते हैं जिनसे या तो स्टॉक मार्केट में लोग बहुत पैसा लगाते हैं या स्टॉक मार्केट का प्राइस डूब जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू प्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज 5 कंपनीज यू विल टेक। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है आपने, ठीक है। शेयर प्राइस ऑफ डिफरेंट कंपनीज एट डिफरेंट डेट्स, डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट उनके प्राइस का ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, ठीक है। देन चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, उनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितना चेंज हुई सीजन के अकॉर्डिंग, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, नेचुरल ह्यूमन डिजास्टर्स के टाइम पर, ठीक है, कितना बढ़ा कितना घटा ये बताना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ड्यू टू चेंज इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से कितना शेयर का प्राइस में फ्लक्चुएशंस आया है, मार्केट वैल्यू में चेंजेस आए हैं। पॉलिसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज, क्राइसिस इन डेवलप्ड कंट्रीज और एनी अदर रीजंस, ठीक है। देन आइडेंटिफाई द टॉप 10 कंपनीज आउट ऑफ 25 सेलेक्टेड। उसके बाद आपने 25 में से टॉप की 10 कंपनीज को लेना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। मार्केट वैल्यू जितनी ज़्यादा जिस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की ज़्यादा है उसको आपने उतना टॉप में रखना और 10 ऐसी कंपनीज को हमें लेना है, ठीक है। एंड वी हैव टू बी व्हाट यू हैव टू बी डू इन अ फाइल, इट डज नॉट मैटर इफ दे हैव मेड प्रॉफिट और लॉस। वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे इससे कोई मैटर नहीं है। आपने टॉप की जो 10 कंपनीज लेनी है उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने स्टॉक एक्सचेंज फाइल में बनानी है। दिस इज योर प्रोजेक्ट, दिस वॉज प्रोजेक्ट नंबर 3। नाउ प्रोजेक्ट 4, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट 4 की।
सो प्रोजेक्ट 4 इज ऑफ मार्केटिंग, ये आपका मार्केटिंग बेस्ड ऑन है। इसमें आपको टोटल 77 टॉपिक दिए हुए हैं, आर्टिकल्स दिए हुए हैं। आप किसी भी एक आर्टिकल को चूज कर सकते हैं, टॉपिक को चूज कर सकते हैं, कोई भी आप उठा सकते हैं इसमें से, ठीक है, एनी ऑफ योर ओन चॉइस, फाइन। देन व्हाट यू हैव टू बी डू, अब आपने उसका क्या करना है, कोई भी आपने एक प्रोडक्ट उठाना है, देन यू हैव टू बी इंश्योर दैट द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट जो आपने उठाया है शुड नॉट बी आइटम्स हुज कंजम्पशन यूज इन discouraged by the society and government like alcohol product, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट एक्सेट्रा। वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जिसको गवर्नमेंट और सोसाइटी के द्वारा डिस्करेज किया गया है, ठीक है, जैसे अल्कोहल है, पान मसाला, टोबैको, ये सारे हैं, ठीक है। नाउ द प्रोडक्ट विच यू हैव आइडेंटिफाई, जो आपने चूज किया है, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो सर्विस है, ऊपर जितने भी दे रखे हैं 77, उसमें से एक, ठीक है, आपने कोई भी एक उसको चूज कर लेना है, चाहे वो मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो या वो प्रोवाइड किया जा रहा हो। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट और सर्विस कीपिंग इन माइंड ऑफ द फॉलोइंग, ये सारी चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है उस प्रोडक्ट को चूज करने के बाद, क्या क्या होंगी, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूं। सो वाई हैव दे सेलेक्टेड दिस प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो भी आपने वो प्रोडक्ट को चूज किया है उसको क्यों चूज किया है, दिस इज योर पॉइंट नंबर फर्स्ट। वाई हैव दे सेलेक्टेड दिस प्रोडक्ट सर्विस, इस प्रोडक्ट सर्विस को आपने क्यों सिलेक्ट किया है, वो आना चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड आउट 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट, अब आपने जिस प्रोडक्ट को चूज किया है उस प्रोडक्ट के अदर मार्केट में जो 5 कॉम्पिटिटर्स हैं या 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं उनके बारे में आपने बताना है कि वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, व्हाट परमिशन एंड लाइसेंस वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने में आपको क्या परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ी थी या क्या लाइसेंस रिक्वायरमेंट था नहीं था, वो आपने डालना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉम्पिटिटर्स यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस, ठीक है, कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आपका प्रोडक्ट कैसे यूनिक है, जिसको हम यूएसपी भी कहते हैं, कॉम्पिटिटर्स यूनिक, और वी कैन से यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस, ओके। देन नेक्स्ट, डज योर प्रोडक्ट हैव एनी रेंज, गिव डिटेल्स, कोई रेंज है, कोई पर्टिकुलर प्राइस। देन व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है। एनलिस्ट इट्स फीचर्स, उसके फीचर्स बताने हैं, उसका लेबल बताना है, उसका लोगो क्या है, उसका टैग लाइन क्या है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ द कंज्यूमर्स, प्राइस ऑफ द रिटेलर, प्राइस ऑफ द होलसेलर, होलसेलर से वो कितने प्राइस में निकलता है, रिटेलर में कितने में बेच रहा है और कंज्यूमर तक कितने में पहुंच रहा है। देन व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन इन द परसेंटेज टू द मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर कितना फायदा गेट करता है, कितना मार्जिन होलसेलर गेट कर रहा है, एंड हाउ मच रिटेलर गेटिंग द मार्जिन, ओके। देन नेक्स्ट, हाउ विल यू प्रोडक्ट बी पैक्ड, वो प्रोडक्ट आपका किस तरह से पैक होता है, ठीक है। एंड देन विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर यू गोइंग टू यूज, गिव रीजन फॉर सिलेक्शन, कौन सा आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देन डिसीजन रिलेटेड टू वेयर हाउसिंग स्टेट रीजन्स, ठीक है, क्या आप वेयर हाउसिंग यूज करेंगे, किस कारण से आप वेयर हाउसिंग यूज करना चाहते हैं। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी योर सेलिंग प्राइस, क्या आपकी सेलिंग प्राइस होगी उस प्रोडक्ट की, कंज्यूमर क्या पे करेगा, रिटेलर क्या पे करेगा, होलसेलर क्या पे करेगा, ठीक है। देन लिस्ट 5 वेज ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट, अब आपने 5 तरीके बताने हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के। एनी स्कीम फॉर होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, कोई भी आप स्कीम होलसेलर के लिए, जैसे डिस्काउंट हो जाते हैं, कूपन्स हो जाते हैं, एक के साथ दूसरा फ्री है, ठीक है, बाय 2 get 1 फ्री, ये वाला डालना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट इज गोइंग टू बी योर यूएसपी, ठीक है। देन व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू विल बी यूज एंड वाई, कौन सा तरीका आप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करेंगे और क्यों। देन सोशल, ड्राफ्ट अ सोशल मैसेज फॉर योर लेबल, अपने लेबल के साथ क्या आप सोशल मैसेज इंडिकेट करना चाहते हैं। एंड व्हाट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक वी विल फॉलो फॉर योर प्रोडक्ट, अब कौन सी ऐसी टेक्निक आप यूज़ करेंगे जिससे आपके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। अब आप कैसे, प्रमोशन का प्लान क्या रहेगा आपका, मार्केटिंग मिक्स में आप कैसे अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे। मेन 4 चीज़ें की हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। तो ये 4 चीज़ों के बारे में आपने उसमें बताना है कि आपने किस तरीके से अपने प्रोडक्ट में P4 का यूज़ किया है फॉर द मार्केटिंग।
Then on the basis of the work done by the student, the project report, you have to be include the following things. जब आप उसको बना लेते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए. Type of the product, serve it, identify the process involved there, brand name, range of the product, identify mark or the logo, taglines, labeling, packaging, price of the product. ठीक है. Sealed channels of distributions, decision related to transportation, warehousing. ठीक है. देन प्रमोशनल टेक्निक कौन सा आपने यूज़ किया है, ग्रांडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप अपने प्रोडक्ट के बाद उसमें इंडिकेट, फाइल में इंडिकेट करेंगे, दिखाएंगे. ठीक है. नाउ प्रेजेंटेशन एंड सबमिशंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. फाइन. सो हियर यू हैव टू बी एज द एंड ऑफ द स्टिपुलेटेड टर्म. जैसे ही आपका फाइल पूरा कंप्लीट हो जाता है, you have to submit your file to school, and I already told you that the following essentials are required to be fulfilled for its presentation and submission. Like the total length of the project will be 25 to 30 pages. The project should be handwritten. The project should be presented in a neat folder. Very much clear this one कि clean होना चाहिए. The project card should be developed in the following sequence. ये सारे sequence होने चाहिए. जैसे कवर पे शुड इंक्लूड द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट. सबसे पहले टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट आएगा, फिर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है. स्कूल एंड ईयर, लिस्ट ऑफ कंटेंट. ठीक है. ये आपको स्क्रीन में दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कर सकते हैं. एक्नॉलेजमेंट एंड प्रीफेस, जिसमें आप एक्नॉलेजिंग द इंस्टीट्यूशन, स्कूल का नेम, द प्लेस विजिट्स, किस जगह पर आप घूमे, कहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन ली, पर्सन हु हैव हेल्प, आपको किस पर्टिकुलर पर्सन ने हेल्प किया. देन इंट्रोडक्शन, देन टॉपिक विद द सूटेबल हेडिंग, आप अपने उसको जो भी आपका आपने बनाया है उसको सूटेबल हेडिंग देंगे. प्लानिंग, एक्टिविटीज़ डन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, आपने कौन कौन सी प्लानिंग करी, कैसे कैसे एक्टिविटीज़ करी. देन ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग ऑफ द विजिट. देन कंक्लूजन आएगा उसमें. ठीक है. जिसमें आप समराइज करेंगे, सजेशन देंगे. ठीक है. और फाइंडिंग फ्यूचर स्कोप ऑफ द स्टडी, फोटोग्राफ्स उसमें लगाएंगे अगर है तो. फाइन. अपेंडिक्स हो गया, कहाँ कहाँ से आपने हेल्प लिया है. टीचर्स ऑब्जर्वेशन रहेगा. देन सिग्नेचर ऑफ द टीचर्स. एंड एट द कंप्लीशन ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जब आप पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, इट शुड बी पंच्ड इन अ सेंटर सो दैट द रिपोर्ट मे नॉट बी रीयूज्ड बट अवेलेबल फॉर द रेफरेंस ओनली. ठीक है. देन यू हैव टू बी सबमिट योर project to your subject teacher. Fine. So I already explained you in beginning that allocation of marks is 20. Initiative, cooperativeness and participation, you will get 2 marks. Creativity in presentation, 2 marks. Content, observation and research work, 4 marks. Analysis of situations, 4 marks. Viva, 8 marks. So total 20 marks. So you have 80 marks for your written exam and 20 marks for your project work. Okay. So I think this information is very much enough for you to making the file. So all the best. Thank you and have a nice day.